آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو صحیح سمے پر مل جائے۔ ذکر خدا اور امام احمد رضا، مصنف مولانا تطہیر احمد رضوی بریلوی، حصہ 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد رضا اور خدا سے دعا۔ مثنوی در رد امثالیہ جو سینکڑوں اشعار پر مشتمل ان کی فارسی کلام ہے، اس کے آخر میں خدا تعالیٰ سے دعا کے جو اشعار ہیں وہ ان کے دل میں یاد الہی کا آئینہ دار ہے۔ آپ کے نعتیہ دیوان ہدائی کے بخشش کے آخر میں یہ مثنوی مندرج ہے۔ چند اشعار جن کا ہندی ترجمہ یوں ہے: اے اللہ، اے میرے مہربان مولا، اے وہ کی راتوں میں جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو تیری یاد سے میرا دل بہلتا ہے، اے وہ کی جس کے نام سے میرے دل اور جان کو راحت ملتی ہے، اے وہ کی تیری مہربانی میری مشکلوں میں مددگار ہوتی ہے۔ دونوں عالم تیری بخشش و کرم کے غلام ہیں، میرے جیسے سینکڑوں جانے تیرے نام پر قربان ہیں۔ ہم خطائیں کرتے ہیں تو بخشتا ہے، تیری پکار ہے کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اللہ اللہ، ہماری طرف سے جرم ہے، خطائیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے اس کے باوجود رحم ہے، بخششیں ہیں۔ صراط مستقیم کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں، اے کرم والے اسلام کو قوت و طاقت عطا فرما۔ ایک مذہب اسلام کے لیے ہزاروں فتنے ہیں، ایک چاند ہے اور سینکڑوں داغ ہیں، اے خدا پاک میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ اے خدا، جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ، ان کے چاروں یار، ان کی پاک آل کا واسطہ، اے بے نیاز تیری راہ کے چلنے والے ان مردوں کا واسطہ کہ جب دنیا سوتی ہے تو وہ نماز میں ہوتے ہیں، ان کا واسطہ جن کے دامن تیری یاد میں روتے روتے بھیگ گئے، اور ان کا واسطہ کہ جب ان سے تیری طاعت و فرمانبرداری ہو جاتی ہے تو وہ خوشی کے نعرے لگاتے ہیں۔ عشق میں نامراد لوگوں کے پھٹے ہوئے گریبانوں کا واسطہ، جہاد میں کام آنے والے مردوں کے خون کا واسطہ، ہمارے خالی دامن مقصد و مراد سے بھر دے، تیرا کام قبول فرمانا ہے اور ہمارا کام دعا کرنا۔ مجبور و بے کس بندوں کے ہاتھ میں اور کیا ہے سوائے اس کے کہ آدھی رات میں تجھ سے دعا کر لیں، اے وہ کہ جس سے مدد مانگی جاتی ہے، بلکہ اے رب بے نیاز تیرا کام قبول فرمانا ہے، اور یہ دعا جو ہم کرتے ہیں یہ بھی صرف تیری توفیق سے ہے۔ ہم کیا ہیں اور ہماری دعا کیا ہے، اے مہرباں، یہ سب تیرے فضل ہیں جو تو نے دعا کرنے والا دل دیا ہے۔ ایک ذرہ خاک پر پڑا ہوا تھا، تو نے آفتاب رسالت کو بھیج دیا جس سے وہ ذرہ چمک اٹھا۔ ذلیل بندے نے اپنے رب پر بھروسہ کر لیا ہے، وہی ہماری پناہ گاہ ہے اور وہی مددگار۔ اس شان والے پروردگار سے بہتر کوئی مولا نہیں۔ اللہ ہمیں کافی ہے اور ہمارا رب سب سے بہتر کام بنانے والا۔ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا معمول رہا ہے اور یہ دعا اسلامیات کا اہم حصہ ہے۔ قرآن مجید و احادیث میں سینکڑوں دعائیں آئی ہیں، بزرگان دین سے بے شمار دعائیں اور مناجات نشر و نجم میں منقول ہیں۔ کسی کے دعا کے کلمات پڑھ کر یا سن کر اس کے دل کے احوال کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ گڑ گڑانا رونا، خدا کو حقیر و ذلیل، مجرم و خطا کار، عاصی و نافرمان کہہ کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا اور گناہوں خطاؤں پر شرمندگی کا اظہار کرنا، یہ سب خدا تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ خلاصہ یہ کہ دعا بندگی کے اظہار کا بہترین طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے دعا عبادت ہی ہے، دوسری حدیث پاک میں ہے دعا عبادت کا مغز ہے۔ دونوں حدیث مشکات کتاب الدعوات صفحہ 194 پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، اللہ سے دعا مانگنا ہی اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ 532۔ امام احمد رضا سے منقول فارسی زبان میں دعائیہ اشعار جو ابھی آپ نے سنی، ان کو سن کر اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اپنے رب سے ان کو کتنا لگاؤ تھا اور بارگاہ خداوندی میں وہ خود کو کس انداز سے پیش کرتے ہیں، ان کی قلبی کیفیات اور دل کے حالات کیا تھے۔ بارگاہ الوہیت میں عاجزی و انکساری اور بندگی کے کس منصب پر وہ فائز تھے، اور وہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں بندگی ہی بڑپن ہے، خود کو ذلیل کر لینا ہی عزت ہے، مجرم بن جانا ہی نجات ہے، سر اٹھانا نہیں بلکہ سر جھکانے میں مرتبہ و شان ہے۔ جو بندگی میں جتنا بڑھ کر ہے وہ مرتبے میں اتنا ہی بلند ہے۔ کئی لوگوں کو جلسوں محفلوں میں نے دعا مانگتے دیکھا تو ان کے انداز اور لہجے سے ایسا لگتا ہے
जैसे माज़अल्लाह खुदा ताला पर उनका कुछ आ रहा है, वह उसको मांग रहे हों। दिलों में सोज व गुदाज नहीं, अंदाज में रिक्कत व सैलान नहीं, गिरिया व जारी से कोसों दूर, गिड़गिड़ाना और रोना यह जानते ही नहीं। सही बात यह है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगने में अगर रोना न आए तो रोने की शक्ल बनाए, मगर वह उन्हें कहाँ मैसर। बिल्कुल जैसे आम बोलचाल, बल्कि बास के लहजे में तो तकरीर व खिताब जैसी कड़क और गरज होती है। ये वह लोग हैं जिनके दिल में खुदा का खौफ और आखिरत की फिक्र नहीं। अरबी व फारसी उर्दू जबान में इमाम अहमद रजा की सैकड़ों दुआएं नज्म व नसर में, उनकी तसनीफात में जगह जगह देखी जा सकती है। उर्दू जबान में उनकी लिखी हुई मशहूर दुआ या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुसा का साथ हो, या इलाही भूल जाऊं न जा की तकलीफ को, शादिए दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो, या इलाही जब पड़े महशर में शोरे दारोगीर, अमन देने वाले प्यारे पेशवा का साथ हो, या इलाही गर्म ये महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। मस्जिदों, महफिलों, मजलिसों, खासकर नमाजों के बाद घर घर पढ़ी जाती है। ये दुआ 15 अशार पर मुश्तमिल है। मैंने यहाँ उनमें से चंद पढ़े। इस दुआ के हर शेर का पहला लफ्ज या इलाही है। किसी शेर में उन्होंने खुदा ताला के अलावा किसी और को निदा नहीं की है, क्योंकि उनका ख्याल था कि जिसको दुआ कहते हैं वो अल्लाह ताला ही के लिए खास है। उनकी दुआओं में अक्सर यह भी देखा गया है कि वो दुनियावी जाह, मनसब, माल और दौलत, शान और शौकत का सवाल नहीं करते। वो अपनी आखिरत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी शफात या फिर दीन इस्लाम के दुश्मनों और फितनों से हिफाजत का सवाल करते हैं। उर्दू जबान में 15 अशार वाली जिस दुआ का जिक्र मैंने अभी किया, उसमें आप एक भी शेर ऐसा नहीं पाएंगे जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला से दुनिया की किसी चीज का सवाल किया हो। और ये एक सहाबी की सुन्नत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सल यानी ए रबिया, जो चाहो मांग लो। तो उन्होंने ये अर्ज किया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको जन्नत में आपका साथ चाहिए। सही मुस्लिम जिल्द 1 सफ़ा 83। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की इस दुआ में हदीस पाक में मजकूर सहाबी रसूल की आखिरत व जन्नत पसंदी और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा दिखाई देता है। वह खुदा से मांगते हैं तो कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगते हैं। वह बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते हैं, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो। कभी यूं कहते हैं, दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की अल्लाह ताला से यह दुआ भी बहुत मशहूर है। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उकबा में न कुछ रंज दिखाना मौला, बैठूं जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर, ईमा पर उस वक्त उठाना मौला। एक जगह वो अपने परवरदिगार से यूं अर्ज करते हैं, नुकसान न देगा तुझे इससे या मेरा, गुफरान में कुछ खर्च न होगा तेरा, जिसमें तेरा नुकसान न हो कर दे मुआफ, जिसमें तेरा कुछ खर्च नहीं दे मौला। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला से दुआ मांगना कितना पसंद था, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जाए कि उनके वालिद गिरामी मौलाना शाह नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने खास तौर पर अल्लाह ताला से दुआ के बारे में एक किताब लिखी थी, जिसका नाम एहसनुल वा अल आदाब अद-दुआ है। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी एक शानदार शरह लिखी, जिसका नाम गैलल मद्दा लेहसनी अलवार कहा है। उनके दौर के कुछ नाम निहाद मौलवियों ने बाद नमाज ईद अल्लाह ताला से दुआ मांगने को खिलाफ सुन्नत करार दिया, तो जवाब में इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी एक किताब तसनीफ फरमाई, जिसका नाम रखा शरूर अल ईद अल सईद फी हलल दुआई बाद सलातिल ईद, यानी नमाज ईद के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का सबूत। नमाज जनाजा के बाद मैयत के लिए दुआ मांगने को भी कुछ उलमा ने मुतलकन नाजायज व गुनाह करार दे दिया। इमाम अहमद रजा ने कुछ शर्तों के साथ इस दुआ को जायज करार दिया। आयत व अहदीस अकली नकली दलाइल के जरिए उन्होंने वाज़े फरमाया कि अल्लाह ताला से दुआ मांगना ममनू व नाजायज नहीं हो सकता, और इस दुआ के सबूत में उन्होंने बाकायदा पूरी एक किताब लिखी, जिसका नाम रखा बज़लुल जवाज अल दुआई बाद सलातिल जनाजा। उनके लिखे हुए का खुलासा यह है कि नमाज जनाजा के बाद मुख्तसर 1-2 जुमलों की दुआ मैयत के लिए मांगने में कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता लंबी दुआ इस मौके पर न की जाए। इसकी वजह से जनाजे में ताखीर होगी और जनाजे को जहां तक मुमकिन हो जल्द दफन करना चाहिए। देर करना इस्लामी मिजाज के खिलाफ है और 1-2 जुमले चंद दुआया कलमात को ताखीर नहीं कहा जा सकता। इस दुआ के लिए उन्होंने दूसरी शर्त ये लगाई कि नमाज की सफों को तोड़कर यानी तीतर बीतर होकर
आगे पीछे खड़े होकर यह दुआ की जाए ताकि इस दुआ को कोई नमाज का हिस्सा और उसमें दाखिल न समझ ले। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को इस बात का भी बहुत ख्याल रहता था कि लोग कहीं गैर जरूरी काम को जरूरी न समझ लें और जो काम नमाज के बाहर है उसको नमाज के अंदर न ख्याल किया जाने लगे। और कोई भी नमाज हो उसका सलाम फेरने के बाद जो दुआ की जाती है या जिक्र व तस्बीह पढ़े जाते हैं ये सब नमाज से बाहर और खारिज हैं। नमाज सलाम फिरने पर पूरी हो जाती है। अगर कोई शख्स सलाम फिरने के बाद फौरन चला जाए तो उसकी नमाज मुकम्मल हो गई, यानी उस पर कोई गुनाह नहीं और यह उसकी नमाज में कोई कमी नहीं। अलबत्ता बेजरूरत फुर्सत के वक्त ऐसा करना मुनासिब नहीं, क्योंकि नमाज के बाद दुआ कबूल होती है और यह इजाबत व कबूलियत का वक्त है। मैं कहता हूँ क्योंकि इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जनाजे के दफन में ताखीर से बचने के लिए मुख्तसर दुआ की इजाजत दी है, लंबी दुआ से मना किया है। लिहाजा इस मौके पर दुआ जितनी मुख्तसर हो उतनी ही बेहतर। यह जो बाज़ जगह जनाजा तैयार करके घर में रख कर देर तक नात ख्वानी करते, सलातो सलाम, मिलाद शरीफ व कुरान करीम की आयतें सूरतें पढ़ने का रिवाज हो गया है, यह मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर जनाजा तैयार होने से पहले पढ़े तो कुछ हर्ज नहीं, या जनाजे के साथ चलते चलते कोई कलामे खैर पढ़े तो बेहतर है और धीरे धीरे पढ़े तो और ज्यादा बेहतर है। दफन के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लोगों को रुकने पर मजबूर न किया जाए। तमाम रिश्तेदारों को जमा करने के लिए जनाजे को बेवजह रोके रखना भी इस्लामी मिजाज के खिलाफ है। नमाजियों की तादाद बढ़ाने के लिए जुमा की नमाज तक या किसी भी नमाज तक मैयत को रखे रहना भी शरन नापसंद है। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, तकसीर दुआ बेशक महबूब है, मगर इसके लिए तावीक यानी टाल मटोल लेट करना मतलूब नहीं। जिस तरह जनाइज पर तकसीर जमात कतन मतलूब है, मगर इसके लिए ताखीर महबूब नहीं। जैसे बाज लोग मैयत जुमा के दफन व नमाज में ताखीर करते हैं ताकि बाद में जमात अजीम शरीकत जमात जनाजा हो। फतावा रज़विया जिल्द 9 सफ़ा 247। खास हदीस पाक में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ऐसा ही मरवी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बुखारी व मुस्लिम में हदीस है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाजे के मामले में जल्दी करो। मिशकात सफ़ा 144, बाबुल मशी बिल जनाजाते। जनाजे की नमाज के बाद चंद कलमात पर मुश्तमिल दुआ मांगने की इजाजत देते हुए इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह यह भी फरमाया, अगर ये गुमान हो कि लोग वाजिब समझेंगे तो कभी तर्क भी कर दे, यानी छोड़ दे। फतावा रिजविया जिल्द 9 सफ़ा 237। यानी अगर यह खतरा हो कि लोग शरन इसको जरूरी व वाजिब या नमाज का हिस्सा समझने लगेंगे तो कभी कभी छोड़ देना चाहिए। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के इस फरमान की रोशनी में मैं कहता हूँ कि आजकल नमाज पढ़ने के बाद मदीना शरीफ की तरफ मुंह करके हाथ बांधकर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम पढ़ने का जो दस्तूर है, अकेले अकेले भी पढ़ते हैं और कभी कुछ लोग मिलकर, इसको भी कभी कभी छोड़ना चाहिए, खासकर उलमा को, ताकि लोग इसको नमाज का हिस्सा या फर्ज व वाजिब शरन लाजिम व जरूरी न समझने लगे। यानी करना भी चाहिए ताकि कोई नाजायज न समझ ले और कभी छोड़ना भी चाहिए ताकि कोई फर्ज व वाजिब शरन जरूरी न समझ ले। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे बोलने में जो कुछ लग्जिशें और खताएं हुई उसे माफ फरमाए। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिमीन को सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन हक पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन।